Hello everyone, this is Vanna Kusrez from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed my channel, so consider subscribing so that you may get a notification whenever I upload a new video. Alright, so today I am going to teach you the class 10th CBSE poem Animals. It is from your book First Flight. Alright, so Animals. This poem is written by Walt Whitman, and he was born in 1890 and he was died in 1892. And Walt Whitman is an American poet. He was an essayist and journalist also, right? And he is known as a father of free verse. Now, what is free verse? Because it's a new kind of poetry in free verse. Free verse means there is no rhythm, there is no rhyme scheme. As you can see here कि यहाँ कोई भी rhyming scheme और कोई भी rhythm नहीं है. हम देखेंगे लास्ट वर्ड आर, इधर कंटेंट है, इधर लॉन्ग कंडीशन, मीन्स यहाँ पे एक भी सिमिलर राइमिंग वर्ड नहीं है एट द एंड ऑफ द लाइन. सो इट्स अ फ्री वर्स पोएम. ऑलराइट, नाउ let me introduce about the poem. In this poem, the poet want to say that animals are far better from the human beings, and poet also wish to live with animals. Okay, he preferred to live with animals than the human beings, than with human beings. Okay, so now the poem goes like this. Let's start. I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-contained. Here, the poet said कि I wish I could turn into animals. Means यहाँ पर poet चाहता है कि काश मैं भी animal में ही convert हो जाऊँ, turn हो जाऊँ, and live with animals, और animals के साथ ही reside करूँ, उनके साथ रहूँ. Why? Because they are so placid. Placid means calm. Because they are so placid. वो बहुत शांत रहते हैं, calm है. And self-contained. Self-contained means है satisfied होते हैं, self-controlled होते हैं वो. ठीक है? They are always satisfied. Here the poet want to say that human beings are always dissatisfied. There is no single person actually is satisfied. तो एनिमल्स क्या है? सेल्फ कंटेंट, ऑलवेज सेटिस्फाइड. आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग. उसने कहा मैं उनको लॉन्ग एंड लॉन्ग यानी कि लंबे समय तक, वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, मैं उनको देखता हूँ, यानी कि उनको ऑब्जर्व करता हूँ. आई ऑब्जर्व दैम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्टैंड एट अ प्लेस. दे डू नॉट sweat and whine about their condition. Now the poet said, I stand, मैं उनको देखता हूँ longer time, for a long time, and they do not, they is referred to the animals, they do not sweat and whine. Sweat means होता है sad और worried, because animals क्या नहीं होते हैं, do not sad और worried means उनको किसी भी चीज की कोई चिंता और सैड नहीं होते हैं वो. एंड whine about their condition, and even they don't complain for anything and any condition. वो अपनी किसी भी कंडीशन और सर्कमस्टेंसेस के लिए कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करते हैं. there is no complaint. okay, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. और ना ही वो lie awake, ना ही वो क्या करते हैं, दे डू नॉट वीप इन द डार्क. ठीक है, वो रात को जागते नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम. इन द डार्क मतलब एट नाइट, तो मीन्स दे डू नॉट अवेक इन द नाइट एंड वीप फॉर देयर सिंस. और ना ही वो दे डोंट वीप और क्राई फॉर देयर सिंस, कोई रिग्रेशन उनको नहीं होता, ना ही वो करते हैं लाइक ह्यूमन बींग्स. जैसा कि ह्यूमन बींग्स
हैव अ लॉट ऑफ वरीज, राइट, एंड इस वजह से वो रात रात भर मतलब एक प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते हैं, ठीक है। और जो भी वो कोई भी वर्क ऐसा करते हैं जो फॉल्स वर्क है, लीगल वर्क है, और उसके लिए उनको नींद भी नहीं आती, तो दे आर ऑलवेज रेस्टलेस। ओके, द पॉइंट वांट टू से द एनिमल्स आर रेस्टफुल, दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ना ही वो एनिमल्स मुझे परेशान करते हैं, बॉदर करते हैं टू डिस्कसिंग अबाउट देयर ड्यूटी टू गॉड, कि उनकी गॉड के लिए क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या उनको करना चाहिए, राइट, इसके लिए भी वो मुझे नहीं करते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि दे ऑलवेज कंप्लेनिंग अदर्स अबाउट द रिलीजन, अबाउट द ड्यूटी टू गॉड, ठीक है, कि उसने फास्ट किया, आपने ये खाया, हमारे रिलीजन में ऐसा करते हैं। तो बट not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things, and animals, not one is dissatisfied. तो animals are always satisfied, animals हमेशा satisfied रहते हैं, कोई भी dissatisfied नहीं है। not one is demented with, demented कहते हैं crazy और you can say mad। और animals don't रन आफ्टर द materialistic थिंग्स, वो अपनी बिलोंगिंग्स के लिए एक दूसरे के पीछे भागते नहीं हैं। विद द मानिया ऑफ ओइंग थिंग्स, मानिया कहते हैं डेस्परेट, किसी भी चीज़ को लेने का पागलपन, किसी भी चीज़ को लेने के लिए, ओइंग थिंग्स यानी कि बिलोंगिंग्स को, पोजेशन को अपने पोजेस करने के लिए वो कभी भी पागलों की तरह चीज़ों के पीछे भागते नहीं है। जैसा कि ह्यूमन बींग्स क्या कर रहा है, रन आफ्टर द मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स, ठीक है, मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स के लिए। तो नाउ सी सम पोएटिक डिवाइसेस यूज्ड इन दीज लाइंस। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। यहाँ देखिए आई 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 आई, तो यहाँ पर क्या है, एजोनेंस, एजोनेंस। नेक्स्ट है, अब आप देखेंगे यहाँ पे लॉन्ग एंड लॉन्ग, क्लोजली प्लेस्ड है, ये टू वर्ड्स रिपीट हुए हैं, सो हियर रेपिटेशन। रेपिटेशन इज हियर, ऑलराइट। स्वेट एंड वाइन, मेटाफर, स्वेट और वाइन को यहाँ मेटाफोरिकली यूज किया गया है, तो हियर मेटाफर। Now, one thing more, you can see here, they do not, they do not, they do not. When we have two or more than consecutive lines, तो वहाँ पर क्या होता है, anaphora, to create some magic effect or impact, ठीक है, पोइट यूज करता है इनको, 3 लाइन्स को। तो यहाँ पर क्या है अपना anaphora, ऑलराइट, एनाफोरा है, यहाँ मेटाफर है, स्वेट एंड वाइन, ओके, यहाँ पे एजोनेंस है, आई जो वोवल साउंड है उसका रिपीटेशन है, ऑलराइट। नाउ द नेक्स्ट लाइन, नॉट वन नील्स टू अनदर नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो। हियर द पोइट सेज दैट नॉट वन नील्स टू अनदर, नोबडी विल बेंड डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन। एनिमल्स के लिए कहा है कि वो किसी के सामने कभी भी कोई भी नील्स नहीं होता, मतलब झुकता नहीं है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो मीन्स, और ना ही हिज काइंड, हिज इज यूज फॉर द एनिमल्स, कि हिज काइंड मतलब इस टाइप की जो उनकी स्पीसीज है, 1000 ईयर्स एगो, जो उनकी हजारों वर्ष पहले की जो स्पीसीज है, वो किसी के भी सामने नील्स नहीं होती है, मीन्स बेंड डाउन नहीं होती है, मीन्स नोबडी इज सुपर। यहाँ किसी को भी कभी भी कॉम्प्लेक्स नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए कहा गया है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। और इस इन एनिमल वर्ड, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल, कोई भी रेस्पेक्टेड नहीं है, सम्मानीय नहीं है, और ना ही कोई अनहैप्पी है, मीन्स सैड है। ओवर द होल वर्ल्ड, इस पूरे
एनिमल वर्ल्ड में. सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड दैट्स व्हाई द एनिमल्स शो मी देयर रिलेशंस. वो अपने संबंधों को मुझे शो करते हैं, मुझे दिखाते हैं. एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं उनको एक्सेप्ट करता हूँ. ऑलराइट, तो शो देयर रिलेशंस. तो हाउ द रिलेशंस ऑफ द एनिमल्स, they are non-discriminatory. तो poet likes the non-discriminatory relations and non-showy attitudes of the animals, जो कि human beings में है. मीन्स यहाँ पर अब आगे देखेंगे, they bring me tokens of myself. tokens means है qualities. qualities means कौन सी qualities? human qualities means the traits of a character. तो क्वालिटीज में हमारी जैसे क्वालिटीज में क्या क्या आ सकता है? कंपैशन, गुड हार्ट, काइंडनेस, कंपैशन, गुड हार्ट, काइंडनेस, और भी जितनी अच्छी क्वालिटीज होती हैं. द पोइट सेज दैट ऑल दीज क्वालिटीज, ये जितनी भी क्वालिटीज हैं, एनिमल पोजेस देम बट नॉट ह्यूमंस. कि एनिमल्स इन सब क्वालिटीज एनिमल्स में हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है. तो वो मेरे पास अपनी मीन्स नॉट सेल्फिश, बिल्कुल प्योर क्वालिटीज जो एक ह्यूमन बीइंग्स की होती हैं, उन्होंने वो मुझे दिखाया. दैट्स वाई मैंने उनके रिलेशंस को एक्सेप्ट किया. दे इवेंस देम, इवेंस कहते हैं दिखाना, प्रेजेंट करना. इवेंट्स मतलब शो करना. दे प्रेजेंट देम प्लेनली इन देयर पोजेशन. अब उन्होंने मुझे ये चीज, पोजेशन मतलब आप जानते हैं बिलोंगिंग्स, तो यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि एनिमल्स की जो पोजेशन है, जो बिलोंगिंग्स है, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स पोजेशन. कि उन्होंने उनके पोजेशन को प्लेनली, सिंपली वे में प्रेजेंट किया इन फ्रंट ऑफ मी. ओके, तो ये क्वालिटीज तो इनकी पोजीशंस हैं, बट ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज क्या है? दे लॉस्ट ऑल दीज क्वालिटीज. ओके, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स दे रन आफ्टर द मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स और थिंग्स. मीन्स उनकी पोजीशन क्या है कि वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स के पीछे, कि और चाहिए और लेना है, तो उसके लिए वो उस चीज के पीछे लगे हुए हैं. बट तो यहाँ पे एनिमल्स की पोजीशन ये है, लेकिन ह्यूमंस इन क्वालिटीज को, इस पोजीशन को खो चुके हैं. मतलब ह्यूमंस डोंट पोजेस ऑल दीज क्वालिटीज बट एनिमल पोजेस ऑल दीज क्वालिटीज. आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स. नाउ हियर द पोइट सरप्राइज. कि आई वंडर मतलब मैं ये आश्चर्यचकित हूं, सरप्राइज. हाउ दे गेट दोज टोकन्स, कि those tokens means these qualities how they got, कि animals को कैसे मिल गई, बल्कि ये तो किसकी थी? they are for the human beings, but animals को ये कैसे मिल गई? तो उन्होंने कहा, यहाँ पे देखिए tokens of myself, या उन्होंने एक वर्ड यूज किया था myself. तो यहाँ myself पोइट के खुद के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग्स को रेफर किया गया है कि all these tokens of myself, कि ये तो मेरे ही टोकन्स हैं, मेरी ही क्वालिटीज हैं, ह्यूमन बीइंग्स की ही क्वालिटीज हैं, तो ये एनिमल्स के पास कहाँ से आई? तो दैट्स व्हाई ही इज इन अ सरप्राइज मैनर कि वेयर दे गॉट दोज टोकन्स, कहाँ से इनको मिल गई, जबकि ये तो किसकी थी? ह्यूमन बीइंग्स की क्वालिटीज थी. डिड आई पास दैट ह्यूज टाइम्स अगो, क्या इन क्वालिटीज को, इन टोकन्स को हमने काफी पहले, अ लॉन्ग टाइम अगो, वी लीव देम, हमने छोड़ दिया था उनको, ठीक है. एंड या फिर नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, या फिर उसको केयरलेसली, है ना, मीन्स वी डिडंट केयर अबाउट दीज क्वालिटीज एंड वी लीव देम, और हमने उनको अवॉइड कर दिया था, केयरलेसली उनको ड्रॉप कर दिया था, कहीं गिरा दिया था, या फिर लीव, हमने उनको छोड़ दिया था. राइट. तो हियर द पोइट कंपैरिजन बिटवीन द एनिमल एंड द ह्यूमन बीइंग्स. राइट, कि जो क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग्स की होती है, ह्यूमन बीइंग्स को पोजेस करना चाहिए, लेकिन
वो एनिमल्स पोजेस करते हैं उस चीज को। तो हियर द पोइट वांट टू से कि वी शुड एक्सेप्ट द रिलेशन। कौन से रिलेशन को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए? जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रिलेशन होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन इन रिलेशनशिप, कोई भेदभाव नहीं होता है, ठीक है, और प्योर रिलेशनशिप होती है। तो हमें ऐसे रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, लाइक एनिमल्स। सो दिस इज द पोएम एनिमल्स। सो द पोएट वांट टू मेक यू लर्न अबाउट द ह्यूमन ट्रेट्स, ठीक है, ह्यूमन बींग्स की, एंड ही ऑल्सो वांट टू से कि द एनिमल्स आर फार बेटर देन द ह्यूमन बींग्स। ऑल राइट, एंड दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम द सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। ये इनका एक पब्लिकेशन था, उसमें से ही इस पोएम को लिया गया है। अब इसमें हम पोएटिक डिवाइस देखते हैं। ऑल राइट, यहाँ देखिए ओ ओ ओ ओ, तो यहां पर भी क्या है? एजोनेंस, रिपीटेशन ऑफ अ वॉवल, ओके, एंड टोकन्स, दिस इज मेटाफर, मेटाफर। ऑल राइट, और मैंने बता ही दिया था इसमें कि ये फ्री वर्ड्स है, मीन्स देयर इज नो रिदम, नो राइमिंग स्कीम, ओके। सो I hope you all have understood this poem. So till then, goodbye.